Hello friends, good morning. Myself PG Bhaviskar. I would like to welcome in the presentation of class 10 mathematics chapter number 3 linear equation into variable. So friends, in a previous session we have seen how to represent or how to solve the pair of equation graphically. Okay. Now today we are going to study algebraic method of solving a pair of linear equation into variables. So there are actually three more methods. Now we are going to study your first method is a substitution method. We are going to study here substitution method. Okay. So this method we will study with the help of example. हम लोग इस मेथड जो है स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके. तो वी विल टेक हियर one of the pair of linear equation into variable. Suppose we have given a pair of linear equation into variable is suppose 7x. This pair of linear equation into variable is given is here 7x minus 15y is equal to 2. Second equation is x plus 2y is equal to 3. We can denote first equation by number 1 and another by number 2. Okay, so these are the equations, linear equation into variable. Now how to solve this pair of linear equation into variable by using substitution method. So there are several steps. Now we are going to study one by one. Your first step is, what is your first step? Pick either of the equation and write one variable in terms of other. That means out of this given two equation we can choose any one equation. ये जो हमें दो इक्वेशन दिए गए उसमें से कोई भी एक सुटेबल इक्वेशन हम लोग पिक करना है, चूज करना है. ओके, जो इजी होगा. इक्वेशन कोई छात्र इक्वेशन 1 ले सकता है, सब मे बी टेक अनदर इक्वेशन, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पे इजी क्या होगा. तो इसीलिए कोई भी चूज कर सकते हैं आप लोग, मे बी 1 और मे बी 2. तो इस पेयर में हमें इक्वेशन 2 आसान लग रहा है. इक्वेशन 2 इज योर x plus 2y is equal to 3. It is easier than equation first. So we can choose here equation 2. And from this equation 2, we can express one variable in the form of another variable. Maybe x in terms of y or y in terms of a, depend upon you. तो यहाँ पे वो भी देखना है कि easy क्या होगा. So in this equation, if we express x in terms of y, it is easier than y in terms of x. So we can choose here, or we can express the given this equation number 2 x in terms of y. इस इक्वेशन को x in terms of y में लिखना आसान होगा, इसलिए हम लोग ये जो दिया गया इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, योर इक्वेशन 2 is what? X plus 2y is equal to 3. We can express here x in terms of y. So we can take x left side as it, x as it, is equal to right side 3 as it, and transfer this 2 from left side to right side. So this plus 2y become minus 2y. So we get here x is equal to 3 minus 2y and denote this equation by number 3. और इसको हम लोग नंबर 3 से डिनोट करेंगे. So we get here this is a x in terms of y, यानी कि x हमने y के फॉर्म में लिखा है, इसको बोलते हैं x in terms of y. Okay, so this is your first step. So again I am going to repeat here. Choose any one equation among the pair of linear equation. Okay, कोई भी चूज कर सकता है. तो we can choose here equation number 2. Now from this chosen equation express one variable in the form of another variable. तो हम लोग यहाँ पे x in terms of y में express कर रहा है, तो here x is equal to 3 minus 2y. So this is your first step. Clear? Now what is your second step? Now your second step is what? Substitute the value of x. यहाँ पे हमने जो equation 3 में x in terms of y में लिखा है, वो x का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है. कहाँ पे? इन अनदर इक्वेशन.
यदि हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 चूज किया है तो इक्वेशन 1 में पुट करना है। यदि इक्वेशन 1 हम चूज करते हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन 2 हमने चूज किया था। तो ये जो x का वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट? 7x, 7 as it x, but value of x is what? From equation 3, 3 minus 2y. To put here, value of x is 3 minus 2y. Okay, this minus 15y as it is equal to right side to as it. Now we can simplify or we can reduce to an equation in one variable. अभी हम लोग इसको reduce करेंगे linear equation in one variable के फॉर्म में by simplifying. तो simplify करते हैं. So simplify करने के बाद मल्टीप्लाई दिस 7 टू दिस ब्रैकेट। तो फर्स्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 7 इंटू 10 21, 7 इंटू माइनस 2y, इट इज माइनस 14y, दिस माइनस 15y एज इट, राइट साइड टू एज इट। ओके, नाउ हियर दिस माइनस 14y और माइनस 15y, दिस बिकम माइनस 19y। ओके, राइट साइड में आपका 2 था, ये जो 20 है लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किया तो दिस बिकम माइनस 21। ओके, नाउ व्हाट इज 2 माइनस 21? इट इज इक्वल टू माइनस 19, so your right side is minus 19. So we get here minus 29y is equal to minus 19. We can denote this equation by number 4. तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको रिड्यूस किया है and we get here this is a linear equation in one variable. और ये जो इक्वेशन मिल जाता है दिस इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y, और ये लीनियर इक्वेशन इन y में हमें मिल जाता है। वी कैन सॉल्व हेयर। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व करने के बाद वी गेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस माइनस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 19 एज इट। ओके, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये माइनस 29 लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो माइनस 29 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड में डिवाइड करेगा। सो वी गेट y इज इक्वल टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय माइनस 29 एंड दिस माइनस माइनस बिकम प्लस। सो वी गेट वैल्यू ऑफ y इज 19 अपॉन 29। तो हमें वैल्यू ऑफ y मिल जाता है 19 अपॉन 29। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है। तो वी गेट हियर वैल्यू ऑफ y इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? 19 अपॉन 29। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस y इन इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 है इसमें y का वैल्यू ये 19 by 29 सब्स्टिट्यूट करना है। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल x। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? दिस x इज इक्वल टू 3 एज इट, माइनस 2y, तो माइनस 2 इंटू y, बट वैल्यू ऑफ y इज व्हाट? 19 अपॉन 29। पुट दिस वैल्यू 19 अपॉन 29। उसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? सो x इज इक्वल टू दिस 3 एज इट, माइनस अभी ये 2 इंटू 19, दिस प्रोडक्ट इज माइनस 38 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका 29, दिस 3 मीन्स 3 अपॉन 1। तो ये सब्ट्रैक्शन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो 3 इंटू 29 इट बिकम्स 87 माइनस 1 इंटू 38 इज 38, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 और ये 29 का प्रोडक्ट 87, ये 1 और 38 का प्रोडक्ट माइनस 38, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 29 का प्रोडक्ट 29। नाउ व्हाट इज 87 माइनस 38? एंड 87 माइनस 38 इज इक्वल टू व्हाट? 49 upon this 29 as it. So we get the value of x is equal to 49 upon 29. So the value of x and the value of y both are the solution of given pair of equation. So therefore here we get the value of x is here 49 by 29. Okay, so therefore x is equal to 49 by 29 and y is equal to 19 by 29 are the solution of given पेयर ऑफ इक्वेशन। ये पेयर का क्या है? सॉल्यूशन है। और यही हम लोग ब्रैकेट में लिखना है 49 by 29। 49 by 29 यानी कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमेशा x का वैल्यू लिखना होता है।
that is 49 by 29, comma, this is 19 by 29. Value of y is here 19 by 29. So this second number is 19 by 29. It is the value of y और second number ही हमेशा y का value लिखना है. So ये order pair में लिखना है. So therefore 49 by 29 and 19 by 29 is a bracket complete करने के बाद is the solution of given pair of linear equation. So in this way we will solve any pair of linear equation by using substitution method. तो इस मेथड को बोलते हैं substitution method, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये substitute करते हुए एक इक्वेशन से हम लोग वन वेरिएबल हम लोग अनदर वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं और बाद में ये जो वन वेरिएबल का वैल्यू है अनदर इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसलिए दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो ये मेथड का ये जो स्टेप है आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना है. तो अगेन वी विल रिवाइव दिस स्टेप्स. तो क्या स्टेप्स है? हाउ टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड मोर क्लियरली. अगेन वी कैन सी हियर हम जनरल अभी बात करेंगे. सपोज वी हैव गिवन अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 with the pair of linear equation in two variable. Okay, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are real number and a1 square plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square is not equal to 0. This is condition of pair of linear equation in two variable. So this is a suppose this is a pair of linear equation. हमें एक पेयर दी गई, जनरल फॉर्म में बात करेंगे हम लोग भी. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या थी? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? तो हमने क्या किया था? चूज एनी वन इक्वेशन अमंग द पेयर. ये जो पेयर है उसमें से एक इक्वेशन हमने चूज किया था विच इज सुटेबल फॉर अस. हमें जो सुटेबल है वो चूज करना है. मे बी इक्वेशन 1 और मे बी 2. तो कोई भी इक्वेशन आप चूज कर सकते हैं. ओके, और चूज करने के बाद एक्सप्रेस one variable in the form of another. That means you may be express x in terms of y or y in terms of x. It is depend upon you. Okay, तो ये इसी तरह ये आपका फर्स्ट स्टेप हमने किया था. फिर से पढ़ रहा हूं. फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, से y in terms of other variable x और x in terms of other variable y from either equation, कोई भी इक्वेशन में से which is a convenient. Okay, मे बी इक्वेशन और इक्वेशन 2 एंड डिनोट. और उसके बाद जो हम लोग वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, वो जो इक्वेशन मिलेगा इसको इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट करना है. ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या किया था हमने? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y और x. ये इक्वेशन 3 में जो y और x में y और x हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y में लिखा है तो x की वैल्यू हमें मिली है. यदि y इन टर्म्स ऑफ x में हमने रिप्रेजेंट किया है तो हमको y की वैल्यू मिले. तो जो भी मिलेगी x और y की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करना है अनदर इक्वेशन जो हमने चूज नहीं किया है. दोनों में से एक चूज किया है, एक बच गया है, उसमें पुट करना है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अबव वेरिएबल y और x इन अ अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट. और उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है. रिड्यूस करने के बाद क्या होगा? जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इक्वेशन को नंबर 4 से डिनोट करना है. डिनोट इट बाय इक्वेशन नंबर 4. ओके, सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिड्यूस करना है. रिड्यूस करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा इट इज डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 4. नाउ वी कैन मेक हियर केसेस. फर्स्ट केस क्या हो सकती है? तो ये जो इक्वेशन 4 हमें मिलेगा इस स्टेप 2 में, ये इक्वेशन 4 की पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटी है. समटाइम दिस इक्वेशन 4 में बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. कभी कभी जो इक्वेशन मिलेगा 4 वो होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है द इक्वेशन 4 इज अ स्टेटमेंट विदाउट वेरिएबल, with no variable या without variable and true statement. और वो स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा. देन ट्रू होगा. ये एक पॉसिबिलिटी है. यानी कि इसी तरह का इक्वेशन हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11. ये जो स्टेटमेंट है इसमें वेरिएबल नहीं है. ओके, और ट्रू भी है. दोनों साइड सेम है. लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दैट मीन्स ट्रू. ओके,
तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट विदाउट वेरिएबल और ट्रू स्टेटमेंट. तो दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? द इक्वेशन 4, दिस इक्वेशन 4 may be statement with no variable and false statement. Equation 4 will be statement without variable and false. That means 2 is equal to 7. यहाँ पे वेरिएबल नहीं है दोनों में. ओके, और लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड 7 है, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है. सो दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये आपका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. सो दिस आर द 3 पॉसिबिलिटीज. ओके, तो ये इक्वेशन 4 की 3 पॉसिबिलिटीज है. तो इक्वेशन 4 की 3 पॉसिबिलिटी फिर से बोल रहा हूं कि इक्वेशन 4 जो है वो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, वन. सेकंड विल बी this is a statement without variable but true statement. Third possibility, this is a statement without variable but false statement. Okay, so these are the 3 possibility. So we are going to study one by one now. Case first में, suppose case 1, this is a linear equation in one variable आ गया. Okay, that is it is a in terms of x or y. वो x और y कोई भी एक वेरिएबल में आपको linear इक्वेशन मिलेगा which can be solved. उसको हम क्या करना है? सॉल्व करना है एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. और उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. मे बी हमें x की मिल सकती है या y की. कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें ये स्टेप 2 की केस ए में मिलेगी. ओके, तो एक वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप 3 है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे स्टेप ए में हमें जो भी x की वैल्यू मिलेगी या y की वैल्यू मिलेगी, कोई भी एक वेरिएबल की मिलने वाली है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है कहाँ पे? ऑब्टेन इन केस 2a. इसमें जो मिलेगी वो क्या करना है? इन द इक्वेशन इन स्टेप 1. स्टेप 1 में जो हमें इक्वेशन मिलने वाला है, कौन सा? इक्वेशन 3, उसमें पुट करना है. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन इक्वेशन 3 एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. और पुट करने के बाद हमें दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा. ओके, ये केस 4 2a में हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा है, वो वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करना है. वो सॉल्व करने के बाद हमें दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा. सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y. एंड दिस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. ये जो यहाँ पे जो दोनों केसेस में x और y की जो वैल्यू हमें मिलेगी, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये जो पेयर है उस पेयर का हमें सॉल्यूशन मिलेगा. और वी कैन राइट इन ऑर्डर पेयर एक्स वाई. ऑर्डर पेयर हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखते समय पहला नंबर x की वैल्यू होना चाहिए, सेकंड नंबर जो है y की होना चाहिए. इज द सॉल्यूशन, ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखते, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो इसी तरह ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एग्जाम्पल या गिवन पेयर का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ केस ए हो गया. नाउ केस बी हमने बोला था सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दिस इक्वेशन 4 इज स्टेटमेंट विथ नो वेरिएबल, यानी कि विदाउट वेरिएबल. नो वेरिएबल मीन्स विदाउट वेरिएबल. ओके, एंड ट्रू स्टेटमेंट. और वो स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा. ट्रू स्टेटमेंट का मतलब 2 is equal to 2, minus 13 is equal to minus 13. These are the statement without variable but true statement. ये true है because left और right side same है. तो तब क्या होगा? Then such a pair has a infinitely many solution. तब उसी पेयर को कितने सॉल्यूशन हो गए? Infinitely many solution. Okay. Now your third possibility यानी कि C is what? If equation 4 is a स्टेटमेंट विथ नो वेरिएबल यानी कि विदाउट वेरिएबल एंड फॉल्स स्टेटमेंट. और वो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट होगा. इक्वेशन 4 इज अ स्टेटमेंट विथ नो वेरिएबल एंड फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, यानी कि 5 इज इक्वल टू 7, -9 इज इक्वल टू 11, लाइक दिस. These are the statement without variable but false statement because left and right sides are different. So these statements are called what? False statement. इसी statement को क्या बोलते हैं? False statement बोलते हैं. And ऐसा है
then such a pair of equation has no solution. और उसी पेयर को सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है, एंड सच पेयर इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. और इसी टाइप की जो पेयर है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. और ऊपर वाले दोनों केस में पेयर होती है कंसिस्टेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द रिमार्क हियर? रिमार्क मींस we substitute the value of one variable by expressing it in term of the another variable to solve the pair of linear equation. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. ये पेयर सॉल्व करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड और नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. नाउ लेट अस सी example based on this substitution method. So your first example is what? Solve the following pair of equation by using algebraic method, यानी कि substitution method. ये जो मेथड है हम लोग substitution method से सॉल्व कर रहे हैं. ओके, substitution method से हम लोग सॉल्व करेंगे. तो हाउ टू सॉल्व इट? तो हमें फर्स्ट स्टेप पता है. व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? चूज एनी वन इक्वेशन and express one variable in the form of another variable. Okay, तो we can choose here. तो ये दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है. somebody choose equation 1, somebody choose equation 2, और आप क्या अलग अलग आप लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि हमें कन्वीनियंट होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए. तो इस इक्वेशन में हम चूज कर रहे हैं इक्वेशन 1. वी विल चूज योर इक्वेशन नंबर 1. योर इक्वेशन 1 इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. अभी इसमें हम लोग एक्सप्रेस करने जा रहे हैं x इन टर्म्स ऑफ y. आप लोग y इन टर्म्स ऑफ x में भी कर सकते हैं. तो हाउ टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y? तो ये x वाला टर्म लेफ्ट साइड में एज इट रखना है, 2x एज इट इज इक्वल टू राइट साइड में 9 एज इट, और ये जो 3y है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किया तो इट बिकम माइनस 3y, एंड दिस इज योर व्हाट? This is 2x is equal to your 9 minus 2y. Now we transfer this 2. ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड में डिवाइड करेगा. So we get x is equal to this 9 minus 3y as it divided by 2. And this is called x in terms of y. तो ये हमारा आ गया x is equal to 9 minus 3y upon 2. So this is your 9 minus 3y टोटली डिवाइडेड बाय, ये पूरा ब्रैकेट में ले, यानी कि पूरा ब्रैकेट को 2 से डिवाइड है, एंड डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 3. ओके, तो इन दिस वे वी एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर. कोई भी वेरिएबल में आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो वी गेट हियर इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. अभी ये x की जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, ये अनदर इक्वेशन में, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्सप्रेस किया है, तो ये वैल्यू कहां पे पुट करना है भी? इक्वेशन 2 में पुट करना है. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे आपका इक्वेशन है 4x, तो 4 एज इट, x की जगह पुट करना है. x का वैल्यू क्या है? 9 माइनस 3y अपॉन 2. ये हमने x का वैल्यू क्लोज ब्रैकेट में पुट किया है, 9 माइनस 3y अपॉन 2. ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ x. 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू दिस वैल्यू ऑफ x प्लस आपका 6y एज इट, राइट साइड में इज इक्वल टू 18 एज इट. नाउ रिड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ, ट्राई टू रिड्यूस इट. फर्स्ट रिड्यूस करते हैं हम लोग, देखते क्या होगा. तो फर्स्ट से ये जो 2 है, दिस 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4, हम लोग ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये इसी तरह का है. 4 इन ब्रैकेट 9 माइनस 3y अपॉन 2, ओके, प्लस 6y इज इक्वल टू 18. इसी तरह है. तो यहाँ पे ये 2 और 4 से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, और बाद में अभी ये 2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 9 इट बिकम्स 18. ओके, 2 इंटू माइनस 3y इट बिकम माइनस 6y, एंड दिस प्लस 6y एज इट इज इक्वल टू 18. तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाता है 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18, क्योंकि क्या हो गया?
ये 2 1 जा 1 यहाँ पे कैंसल, ये 2 2 जा 2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 9 18, 2 इंटू माइनस 3y 6y, this plus 6y as 8. Okay, right side means equal to 18. Now see here, this on left side minus 6y plus 6y cancel. Your left side is what? 18, right side is also 18, denoted by equation 4. तो यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन 4 मिला है 18 is equal to 18, इसमें वेरिएबल है क्या? नहीं है, देयर इज नो वेरिएबल, सो वेरिएबल नहीं है, सो दैट मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट विदाउट वेरिएबल. वेरिएबल नहीं है यानी कि विदाउट वेरिएबल या नो वेरिएबल, बट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. 18 इज इक्वल टू 18, दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ट्रू है. ओके, और हमें पता है यदि इक्वेशन 4 इज अ स्टेटमेंट विदाउट वेरिएबल है एंड ट्रू स्टेटमेंट है तो केस भी हमने देखा है, तब क्या होता है? Then given pair of equation has infinitely many solution. तब उस पेयर को कितने सॉल्यूशन होते हैं? Infinitely many solution. So this is a statement without variable and true statement. So this statement is true for all value of y. ये जो स्टेटमेंट है y की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है. However, we do not get a specific value of y as a solution. यहाँ पे कोई भी y की वैल्यू के लिए ये ट्रू है, तो आपको स्पेसिफिक ऐसी y की वैल्यू नहीं मिल रही है, स्पेसिफिक y की वैल्यू मिलने वाली नहीं, एनी वैल्यू के लिए तो ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए. देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x. हमें स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y नहीं मिलेगी तो x की भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलने वाली है. सो दिस सिचुएशन हैज अराइजेस बोथ द गिवन इक्वेशंस आर द सेम, तो दोनों में सेम आ रहे हैं. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इसलिए ये जो पेयर है दिस पेयर हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ये जो पेयर दी गई है इक्वेशन 1 एंड 2 की, इसको कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्योंकि ये जो इक्वेशन 4 हमें मिल रहा है, दिस इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई सच अ पेयर हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और यदि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया है x plus 2y minus 4 is equal to 0. We can denote it by equation 1. Another equation is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. We can denote it by equation number 2. ये पेयर दी गई, ये सॉल्व करना है by using substitution method. तो now we can choose here suitable equation. Okay, maybe 1 or maybe 2, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 से आसान है, क्योंकि इक्वेशन जो 1 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा इक्वेशन 2 से. सो वी कैन चूज हियर इक्वेशन 1. ओके, चूज किया. नाउ एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x. तो देखिए इक्वेशन 1 में x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, y का 2 है, तो बेटर होगा कि हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y में यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो इजी होगा, इसलिए यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे. So we can express this from equation 1, x plus 2y minus 4 is equal to 0. So left side में x as it. Now we can transfer these two terms plus 2y minus 4 to the left side. तो उनका साइन चेंज होगा. This minus 4 become a plus 4 and plus 2y become minus 2y. So we get x is equal to 4 minus 2y and denote it by equation number 3. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. This is your first step. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. ये x की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किए इन अनदर इक्वेशन जो हमने चूज किया, उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन है कि इक्वेशन 2 है आपका, उसमें ये x का वैल्यू पुट करना है. तो पुट करने के बाद क्या होगा? 2x 2x की वैल्यू ये आपकी है 4 माइनस 2y प्लस दिस 4y एज इट, ये 4y एज इट माइनस 12 एज इट इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट. 2 से इस ब्रैकेट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का 2 इंटू 4 क्या होगा? 8 माइनस 2 इंटू 2y इट बिकम 4y माइनस 4y, दिस प्लस 4y एज इट. ओके, एंड दिस 12 हम लोग ट्रांसफर यदि करते हैं या माइनस 12 एज इट लिखेंगे इज इक्वल टू 0. नाउ सी दिस माइनस 4y प्लस 4y कैंसल. What is the 8 minus 12? 8 minus 12 means minus 4
और राइट साइड आपकी है 0, सो वी गेट -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -4 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज अ स्टेटमेंट विदाउट वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है, एंड इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। -4 इज इक्वल टू 0 यानी कि लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग है, डिफरेंट है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड फॉल होने के बाद अपना जो केस 3 था, सी, केस नंबर सी, if equation 4 is a statement without variable and false statement, then such a pair has no solution. So therefore this pair of equation does not have a common solution, it means no solution, therefore given pair of linear equation has no solution, इसलिए ये पेयर को सॉल्यूशन नहीं है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? तो ये तीनों केस हमने देखिए। Now let's say more example based on this topic. तो solve the following pair of linear equation by substitution method. तो given pair is, ये pair दी गई, your first equation is x plus y is equal to 14, second is x minus y is equal to 4. अभी इसमें your first step क्या है, express one variable, choose any one equation, कोई भी एक equation choose करना है, 1 कीजिए 2 कीजिए, नो प्रॉब्लम, एंड एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर, कोई भी x इन टर्म्स ऑफ y में या y इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे भी हमने इक्वेशन 1 चूज किया है, ये जो पहला इक्वेशन है, वी कैन चूज योर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमने चूज किया। इसमें x इन टर्म्स ऑफ y में लिखना है, तो लेफ्ट साइड में x एज इट, राइट साइड वाला 14 एज इट, ये लेफ्ट साइड का जो y है वो हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, इट बिकम्स माइनस, सो दैट इज माइनस वाई, सो वी गेट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इन टर्म्स ऑफ y में हमें मिल गया, एंड डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 3। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये x का वैल्यू जो हमने फाइंड किया है, ये अनदर इक्वेशन में कौन सा, जो अभी हमने 1 चूज किया था, इसलिए 2 में पुट करना है, इन इक्वेशन 2 put the value of x is equal to 14 minus y in equation 2, ये equation 2 में put करना है। तो your equation 2 is what, x minus y is equal to 4, x, लेकिन x की जगह क्या पुट करना है, 14 minus y। okay, this minus y as it, right side means equal to 4 as it. Now see, this 14 as it, minus y means minus 2y, right side में 4, denoted by equation 4. Now see here, this is a linear equation in variable y, ये one variable y, okay, this is a linear equation, ये equation 4 जो मिला है क्या है, 14 minus 2y is equal to 4, this is a linear equation in variable y, okay, तो ये केस ए में आ गया आपका, ये linear equation मिल गया in variable y. Now solve it and find out the value of this variable y. इसको सॉल्व करके उसमें जो वेरिएबल y है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं, दिस 14 एज इट, क्या किया है, राइट साइड वाला 4 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम -4, और लेफ्ट साइड वाला -2y राइट साइड में ट्रांसफर किया, तो इट बिकम्स +2y, तो वी गेट 14 - 4 इज इक्वल टू 2y, 14 माइनस दिस 2y एज इट, और ये 14 - 4 यानी कि 10, so we get 2y is equal to 10, and therefore y is equal to 10 upon 2, लेफ्ट साइड का 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करेगा, so 10 upon 2 means 5, so we get the value of y is 5, so we get here the value of one variable y, तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल जाता है 5। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y is equal to 5 इन इक्वेशन 3, ये जो 3 है आपका उसमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो उस इक्वेशन 3 था x लेफ्ट साइड एज इट इज इक्वल टू 14 एज इट माइनस y की जगह y का वैल्यू है 5, सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज 9, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 9, तो हमें यहाँ पे मिलता है x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, सो वी गेट देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। ये हम लोग ऑर्डर पेयर में इसी तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर हमेशा x का वैल्यू यानी कि 9, सेकंड नंबर y का वैल्यू यानी कि 5, सो देयरफॉर 9 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। इसी तरह भी हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे वी विल सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वन मोर एग्जांपल,
Second example is what? S minus t is equal to 3. First equation, we can do it by equation 1. Second is s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. These are the linear equation into variable. Which are the variables here? Here variables are s and t. ये जो पेयर है उसमें वेरिएबल s और t है. ओके, तो s और t वेरिएबल है. अभी वी कैन चूज एनी वन इक्वेशन और प्रीवियस बिफोर चूजिंग वी कैन सिंप्लीफाई इक्वेशन 2 अगेन. यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता है. तो सिंप्लीफाई किसी तरह करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यदि नंबर आता है तो इट इज डिफिकल्ट बन जाता है. तो इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करना है मीन्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर. तो सेकंड इक्वेशन का डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 2 है और लास्ट टर्म में डिनोमिनेटर 1 है. तो उनका एलसीएम होता है 2, 3 और 1 का एलसीएम 6. तो क्या करना है? मल्टीप्लाई थ्रू आउट दिस इक्वेशन यानी कि ईच टर्म बाय देयर एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो इक्वेशन 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो क्या होगा? तो 6 से मल्टीप्लाई किया. ओके, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू एस अपॉन 3. तो ये 3 1 जा 1, 3 2 जा, यानी कि क्या आ गया आपका 2s आ गया. ओके, फर्स्ट टर्म को 6 से मल्टीप्लाई किया 2s आ गया. उसी तरह सेकंड टर्म आपका है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके 6 इंटू टी बाई 2 है, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 1 जा 1, 2 3 जा, सो दिस बिकम 3t. तो आपका सेकंड टर्म आता है 3t. राइट साइड में आपका 6 था, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया 36. सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाता है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. तो दिस इक्वेशन इजियर देन द प्रीवियस इक्वेशन, इजियर बन जाता है. तो हमेशा क्या करना है? यदि डिनोमिनेटर में नंबर है तो उसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई थ्रू दिस इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर. तो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन. ये सेकंड इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है. फर्स्ट इक्वेशन आपका ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन इजियर फॉर्म में ऑलरेडी क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3. पहला इक्वेशन आपका है s माइनस टी इज इक्वल टू 3. ये पहला इक्वेशन है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में. हमने सेकंड इक्वेशन इसी तरह सिंप्लीफाई किया. ओके, नाउ और योर फर्स्ट टाइप चूज एनी वन इक्वेशन. अभी इक्वेशन 1 और 3 मीन्स सेकंड इक्वेशन. ओके, 3 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2, वही इक्वेशन है. अभी इसमें से चूज करना आसान कौन सा होगा? इक्वेशन 1 ही आसान है, क्योंकि इसमें s और t का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो ये इजी है. तो इस इक्वेशन में चूज करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 एंड एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर. यहाँ पे s इन टर्म्स ऑफ t में लिखना आसान है, क्योंकि t को निगेटिव साइन है, माइनस साइन है. तो हम लोग t ट्रांसफर करेंगे. तो लेफ्ट साइड में s एज इट, राइट साइड में आपका 3 एज इट. ओके, लेकिन ये माइनस टी जो है लेफ्ट साइड का राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम प्लस होगा, और दिस प्लस 3 राइट साइड वाला एज इट. सो वी गेट s इज इक्वल टू t प्लस 3 एंड दिस इज योर s इन द फॉर्म ऑफ t. एक्सप्रेस s इन द फॉर्म ऑफ t हियर. ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 से डिनोट करेंगे. तो वी गेट इक्वेशन 4 इज हियर s इज इक्वल टू t plus 3 denoted by 4. Okay, now resubstitute the value of s. Substitute the value of s in which equation? 3. 2 जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म उसमें पुट करेंगे. तो यानी कि आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है, उसमें इसका वैल्यू हम लोग t प्लस 3 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो क्या होगा आपका 2s, तो 2 एज इट, s की जगह पुट करना है, t प्लस 3 पुट किया, प्लस आपका 3t एज इट इज इक्वल टू राइट साइड 36 एज इट. नाउ मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2t, 2 इंटू टी इज 2t, प्लस 2 इंटू 3 6, प्लस दिस 3t एज इट, राइट साइड 36 एज इट. नाउ दिस 2t प्लस 3t बिकम 5t. राइट साइड में लेफ्ट साइड में प्लस 6 एज इट, राइट साइड 36 एज इट, डिनोटेड बाय इक्वेशन 5. नंबर बहुत है हमारे पास, 4 ही देना चाहिए, इससे कुछ नहीं. So we get equation 5, and this equation, your equation 5 is a what? This is a linear equation in one variable t. ये क्या है?
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टी में है, वी कैन सॉल्व इट, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, क्योंकि उसमें वेरिएबल टी है, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हाउ टू सॉल्व इट, इसलिए क्या करना होगा, ये 6 जो है लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला दिस 5t एज इट इज इक्वल टू राइट साइड दिस 36 एज इट, प्लस 6 बिकम -6। ये +6 जो है राइट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम माइनस। ओके, नाउ दिस 5t एज इट, 36 - 6 इज 30। अभी 5 ट्रांसफर करेंगे तो वी गेट t इज इक्वल टू 30/5 एंड t इज इक्वल टू 6। 5 1 जा 1, 5 6 जा 30, so we get value of t is 6. Now put the value of t is equal to 6 in which equation, 4। ये जो 4 इक्वेशन हमें मिला था, s इज इक्वल टू t प्लस 3, उसमें t का वैल्यू 6 पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 5, ओके, substitute the value of y in a value of y, not here y, value of t in equation, which equation, 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या है 4, यस इज इक्वल टू टी प्लस 3, टी की वैल्यू हमने 6 फाइंड किया है, प्लस 3 एज इट, सो वी गेट एस इज इक्वल टू 6 प्लस 3 यानी कि 9, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एस इज 9। वैल्यू ऑफ टी हमें 6 मिला था, यस 9 मिला था, सो वी गेट फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे यस है, दूसरा टी है, इसलिए ये ब्रैकेट में पहला यस का वैल्यू लिखना है 9, दूसरा है टी का 6, सो देयरफॉर 9 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें 9 6 इस पेयर का इक्वेशन, इस पेयर का सॉल्यूशन मिलता है। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, one more example is form the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम है, उससे हमें पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है। हमने देखा है कि हाउ टू मेक लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द सिचुएशन, देखा है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद वो जो दो इक्वेशन हमें मिलने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो व्हाट इज योर सिचुएशन, क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हमें दिया गया है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 होगा, इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी हमें डिफरेंस मिलेगा, और वो डिफरेंस दिया गया है 36। एंड वन नंबर, सेकंड कंडीशन इज वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर जो दूसरा नंबर का 3 टाइम है, यानी कि बड़ा वाला जो नंबर होगा वो छोटा वाला नंबर का 3 टाइम होगा, फाइंड देम। तो वो दोनों हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे in this situation, in this problem, there are two things are unknown. Which are the two things? Two numbers, ये जो दो नंबर है वो हमें जो फाइंड करना है वो अननोन है ना, टू नंबर्स आर unknowns, so we can represent these two numbers by two difference variable। suppose one number is x, another is y, so हम लोग x और y रिप्रेजेंट करेंगे। suppose the required numbers, two numbers are x and y, तो हम वो दोनों नंबर क्या मान लेते हैं, x और y, इसमें x इज ग्रेटर देन y, पहला वाला नंबर दूसरा वाला से बड़ा है, ये भी हम लोग एश्यूम कर लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन प्रॉब्लम में क्या है, फर्स्ट कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, हमें ये पहली कंडीशन दी गई है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, ये दो नंबर है उनका डिफरेंस 26 है, यानी कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करने के बाद हमें 26 मिलता है। बड़ा नंबर हमने x मान लिया, छोटा y, तो बड़ा नंबर से छोटा यानी कि x माइनस y कितना मिलता है, 26। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी गेट हियर x माइनस y इज इक्वल टू 26 एंड डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 1। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में से हमें पहला लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज योर सेकंड कंडीशन, क्या है, सेकंड कंडीशन इज व्हाट, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, वन नंबर यानी कि बड़ा नंबर हमेशा छोटा नंबर का ही 3 टाइम हो सकता है, छोटा कभी बड़े से हो सकता है क्या, नहीं। तो बड़ा नंबर यानी कि x इज इक्वल टू 3 टाइम मींस 3 इनटू छोटा नंबर यानी कि y, सो वी गेट x इज इक्वल टू 3y, वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 2। तो सेकंड कंडीशन से हमें ये सेकंड, सो इक्वेशन 1 एंड 2 इज अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हियर। तो हमें ये दो इक्वेशन मिल जाता है, पहला है x माइनस y इज इक्वल टू 26, दूसरा है x इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन 2 हम ऐसे ही लिख सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नो नीड बिकॉज वी वांट हियर वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं डायरेक्टली
या ऐसा ही रखा तो चलेगा, या इसी तरह भी आप लोग यदि लिख दे तो नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ दिस इक्वेशन 2 इज ऑलरेडी in one variable in the form of another variable, that is x in terms of y ऑलरेडी है, तो फिर से एक्सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं. वही आपका इक्वेशन 3 हो गया. ओके, दो या उसको वही नंबर रखते 2 3 वही आ गया. x इज इक्वल टू 3y. ओके, दिस इज x in terms of y. नाउ substitute the value of x is equal to 3y in equation 1. ये x is equal to 3y हमने यहाँ पे जो मिला है वो वैल्यू x का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है. तो आपका इक्वेशन 1 है x मीन्स 3y माइनस y, दिस माइनस y एज इट इज इक्वल टू राइट साइड 26 एज इट. लेफ्ट साइड में देखिए 3y माइनस y आपका होता है 2y इज इक्वल टू राइट साइड 26, एंड दिस इज वी कैन डिनोट इट बाय 3. हम लोग उसको 4 से डिनोट करते हैं, यहाँ पे 3 ही रहे. तो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y. ओके, दिस इज लीनियर इक्वेशन. नाउ वी कैन सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. इसको सॉल्व कर दे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो आसान है, सिर्फ क्या करना होगा, ओनली ट्रांसफर दिस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. उसको ट्रांसफर यदि हम लोग करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y. तो ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 26 अपॉन 2 अपॉन में आएगा. सो वी गेट y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 मीन्स 30. So we get the value of y is 30. Now put the value of y is equal to 13 in equation 2. जो 3 मिलता था यहाँ पे 2 है, उसमें y का वैल्यू 13 पुट करना है. तो इक्वेशन 2 आपका था x is equal to 3y. तो x as it, 3 as it, y का वैल्यू 13. तो 3 into 13. So 3 into 13 means 39. So we get the value of x is 39. So therefore your required numbers are x is equal to 39 and y is equal to 13 are the required numbers. हमें जो नंबर चाहिए थे वो दोनों नंबर हमें मिल गए. तो इसी तरह हम लोग कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो आप लोगों को शायद ये मेथड समझ में आ गई होगी. इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9420439784. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट यू अगेन